بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نیک عورت اور ایک بندر کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی عبرتناک ہے، اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ایک اللہ والے نیک اور پاکیزہ عورت، بے زبان معصوم بولنے والے بندر سے زنا۔ گواہی دینے کے لیے 4 لوگ اور اس بندر نے عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں کے لوگ توبہ استغفار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان لوگوں نے مجبوری میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو آپ سب کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ناظرین، یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ بہت پرانے دور کی بات ہے۔ کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے شوہر کا کچھ سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی جس کی شادی کے لیے وہ بڑھیا عورت بڑی ہی پریشان رہتی تھی۔ اس کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رشتہ داروں نے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا کہ یہ غریب بڑھیا بیٹی کو جہیز تو دے گی نہیں، اور ہم اس کنگال بڑھیا کی بیٹی کو کیوں اپنائیں؟ ویسے بھی غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بڑھیا کی بیٹی اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا، اور جب وہ تلاوت کرنے بیٹھتی تو اس کے منہ سے پھول گرتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک معزز سردار بھی رہا کرتا تھا جو کہ بہت نیک تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ جب اس کو بڑھیا کی جوان بیٹی کا پتہ چلا کہ کوئی بھی اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہا، صرف اور صرف غریب ہونے کی وجہ سے، تو اس نے بڑھیا کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ بڑھیا اس رشتے پر فوراً مان گئی اور اپنی بیٹی کو 2 کپڑوں میں معزز سردار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کو کچھ دن گزرے تو وہ بڑھیا انتقال کر گئی۔ اس سردار کا بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا، صرف بیوی ہی اس کا سہارا تھی۔ اب شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن سردار کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اسی غم کو لے کر سردار کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ بیمار رہتا تھا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نیک پاکیزہ لڑکی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سردار بھی دنیا سے چلا گیا اور وہ عورت اکیلی رہ گئی۔ وہ عورت یوں تو حافظ قرآن تھی، پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی۔ اس کا شوہر اس علاقے کا معزز سردار ہونے کی وجہ سے اس عورت کی بھی نیک نامی کے چرچے جگہ جگہ موجود تھے۔ سب جانتے تھے وہ عورت بہت پاکیزہ خیالات کی مالک ہے اور ایک اچھے انسان کی بیوی ہے، یہاں تک کہ عبادت گزار بھی ہے۔ لوگ اس عورت کی دعائیں لینے دور دور سے آتے تھے۔ جو بھی ان لوگوں کے مسائل ہوتے وہ عورت حل کر دیا کرتی تھی، اسی لیے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی نے اس پر تہمت نہیں لگائی، نہ ہی انگلی اٹھائی، بلکہ جو برے آدمی تھے وہ بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ عورت بہت خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ سر پر کسی مرد کا سایہ تھا، یعنی شوہر بھی نہیں تھا اور اس کے ماں باپ بھی موجود نہیں تھے، نہ کوئی بھائی تھا۔ خوبصورت بیوہ عورت اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ عورت جانتی تھی اب وہ تنہا ہے، شوہر کا سایہ اس کے سر پر نہیں۔ اب لوگ اس پر الزام بھی لگائیں گے، اس کا جینا دوبر بھی کر دیں گے، اس پر مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جس جگہ رہا کرتی تھی وہاں پر ایک بہت امیر آدمی تھا، جس نے اس عورت کو جب پہلی بار دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ اس لڑکی کے شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے نہ ہی کبھی گندی نظر سے دیکھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور جرت تھی، کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ لیکن حالات بدلے تو اسے اپنے کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ محنت بھی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی، دن میں روزہ رکھتی، رات میں لمبے لمبے سجدے کیا کرتی۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہر کسی کی مدد کیا کرتی، لیکن اب تو اس کو بہت سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ایک بار طوفانی بارش ہو رہی تھی، گلی بازاروں میں بہت کیچڑ تھا جس نے دلدل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کیچڑ میں ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ گرا ہوا تھا جو کہ دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس چھوٹے سے بندر کے پاس آئی، اس کی ٹانگ زخمی ہو چکی تھی۔ اس عورت نے جلدی سے اس دلدل میں سے اس بندر کے بچے کو نکالا اور اس بندر کو اپنے گھر لے آئی۔ جلدی سے اسے نہلا دھلا کر اس کی ساری مٹی صاف کی اور اس کی مرہم پٹی کی اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ میں اسے پالوں گی اور اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایک بے زبان جانور سے اس کو پیار ہو گیا تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور وہ اس کی نماز کے کمرے میں نہیں جایا کرتا تھا، بس دور بیٹھے عورت کی تلاوت کو سن کر جھومتا رہتا تھا۔ اس بیوہ جوان عورت کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن اب اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی تھی۔ عورت جب بھی اپنے گھر کا کوئی کام کرنے لگتی تو وہ بندر بھاگ بھاگ کر عورت کو چیزیں پکڑاتا اور اس کی کام میں ہیلپ بھی کرتا تھا۔ وہ بالکل اس کے بچوں کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس بندر کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا، بچپن سے لے کر اب تک وہ اندر ہی رہتا، باہر نہیں آتا تھا۔ وہ بندر اب بڑا ہو رہا تھا اور اپنی مالکن کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔
क्योंकि वो नेक औरत इसका बहुत ख्याल रखती थी। उस बंदर के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता था। उसने उसे सिर्फ शौक के लिए थोड़ी पाला था, वो इसके दुख सुख का भी साथी था। जब वो औरत सोती तो वो बंदर औरत से बहुत लाड करता, कभी उसकी जुएं निकालता तो कभी उसके मुंह पर हाथ फेरता। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वो घर से बाहर उस रईस आदमी के सामने से गुजरी, उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत के चेहरे को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, वो जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था और उसके आगे पीछे हर औरत फिरा करती थी सिर्फ उसके पैसों के लिए। लेकिन वो औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि इस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूँ। मुलाजिम ने यह खबर आकर अपने मालिक को दे दी। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया कि हमारा मालिक शहर का सबसे रईस आदमी है, उस जैसा कोई अमीर नहीं। तो कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो या अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। इतना सुनने के बाद उस अमीर आदमी ने फैसला किया, मैं खुद उस औरत के पास जाऊंगा। फिर जब वो औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। वो सब कुछ जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा आशिक हूँ, जब से तुम्हें देखा है तुमको पाना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ जिनाकारी कर लूं। अगर करना चाहते हो तो शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वो नहीं चाहेंगी कि मैं तुमसे शादी करूं। वो लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हें सब कुछ दूंगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी न बनूं बल्कि रखेल बनाना चाहते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी दौलत मुझे मुतासर नहीं कर सकती। जाओ किसी और को खरीद लो। लेकिन वो आदमी तो शैतान था, उसके अंदर खबासत थी। वो चाहता था कि बस एक बार एक रात इस औरत को हासिल कर ले। वो आदमी उस औरत को हासिल करके अपनी बीवी तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। उस दिन उसने सोचा कि मैं उसे अपने आदमियों से कहकर उठवा लेता हूँ। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसे लगा किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। वो कोई ऐसी ना नजर आने वाली ताकत थी जो इस औरत को बचा रही थी। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो औरत के सहन में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दुआ के लिए उस बेजुबान ने हाथ उठाए हुए थे और आसमान की तरफ देख रहा था। वो डर के अपने मालिक के पास हाँफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वो औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास न जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे ये काम करवाएं। वो थक गया था। उसने कहा, क्या करूं, ये औरत तो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रही और ये लोग एक नाजुक औरत को ना उठा सके, न जाने किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश की और वहाँ पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो इस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है और उसकी औलाद भी नहीं है। मैं उसे हासिल करना चाहता था, वो तो मेरे चंगल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे, शायद वो उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे मना किया। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वो लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो औरत तो पाक साफ थी। उसको पता चल गया ये शैतान है और उसके साथ खबासत करना चाहते हैं। उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया, यानी कि वही जवाब दिए। वो लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा, सही कहा था तूने, वो औरत तो किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करेंगे। उस औरत के खिलाफ उन सब को बदजन करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं ना, देखना हम उसे यहाँ की मशहूर तवाइफ बना देंगे। उस औरत को इस आदमी की सब करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वो नेक औरत सब गुनाहों से बचती रही। उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर गरीब लोगों को भी मिला लिया, क्योंकि उसका एक नाम और मर्तबा था। तो जब उसने झूठी कहानी सुनाई तो सबको यकीन आ गया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने देते, उसके घर में पत्थर फेंकते जाते। वो सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी दोस्ती कर ली थी,
उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी। वो औरत अपने बंदर के साथ ऐसा काम करती है। औरत पर एक ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोल कर तौबा तौबा करने लगी। कहने लगी तभी हम कहें ये औरत शादी क्यों नहीं करती, बंदर जो पाला हुआ है इसने। अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरिया दिली और नेक नामी की वजह से लोग इज्जत करते थे, वो सब उसको पत्थर मारने लगे। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। उसका वो बंदर जो कि उसकी हिफाजत के लिए ही था, उसको किसी ने कभी देखा भी नहीं था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द से एक बेजुबान जानवर तक रो पड़ा। एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराशी की जा रही थी, लेकिन वो लोग इस पर बराबर इल्जाम लगा रहे थे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही, मैंने कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि बंदर के साथ मेरी रफाकत बताई जा रही है। ये काम तो मैंने एक इंसानियत के तहत किया था जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है। इस पर मैंने रहम खाकर इसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह इसे पाला, इसकी परवरिश की। आज इसके साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं जिनाकारी कर रही हूँ। या अल्लाह किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो कि सही इंसाफ कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे किरदार की गवाही ऐसे दिलवा के सारी दुनिया देखे। सारी रात वो दुआ मांगती रही और वो बेजुबान बंदर भी औरत के पास बैठा हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। फिर अल्लाह की जात ने उनकी दुआ को कबूल किया। अब यहाँ पर वो चारों बदकार आदमी जो कि उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा, सुना है कि यहाँ पर कोई काजी है जो कि सही फैसले करते हैं। किसी ने कहा, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं। लोगों के पास जो भी परेशानियां हों सब उनके पास ही जाते हैं। तो वो रईस बोला, फिर तो वो मेरी बात भी सुनेंगे, चलो चलते हैं, देखते हैं वो हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 3 साथी कहने लगे, हम तो कहते हैं उस औरत को भी साथ ले चलो। तो वो कहने लगा, नहीं, पहले हम उनको सारी सूरत हाल बताएंगे, फिर वो जो फैसला करेंगे वही होगा, और मुझे उम्मीद है हमारे हक में ही फैसला होगा और हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उसी शाम को वो चारों खबीस रईस आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे और सब झूठी कहानी सुना दी। ये औरत एक फाहिशा औरत है और इसने आदमी तो दूर एक बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ा, इंसान तो क्या इसने बंदर तक को नहीं बख्शा। हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले से निकाल दी जाए, इसको पत्थर मारे जाए, संसार किया जाए, इसको लहू लहान कर दिया जाए। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही है, क्योंकि इस औरत की वजह से हमारी बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अल्लाह वाले जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, दाल में कुछ काला है। पहले मुझे खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। काजी का आदमी पहुंचा खातून के पास और पैगाम दिया, वक्त के काजी अल्लाह वाले तुम्हें बुला रहे हैं, वो साहिबे इल्म हैं, उनको एक बहुत कीमती फैसला करना है। वो कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, आपको काजी वक्त ने बुलाया है और उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। औरत तैयार हो गई और उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। ये बात वो आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा कि मुझे बताओ बीबी कि तुमने जिना किया है, वो भी एक बंदर के साथ। औरत ये सुनकर तड़प उठी कि बंदर के साथ, पर ये इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिबे इल्म हैं, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वो औरत सच कह रही है। अब वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि इन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर इन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलवाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उससे पूछा कि बंदर से उस औरत ने जिना किया तो उस बंदर को तूने जरूर देखा होगा। आदमी बोला, जी हाँ। फिर उसने बोलना शुरू किया कि वो स्याह रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख यानी गहरा लाल रंग का है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, तुम जिस औरत को फाहिशा कहते हो और कहते हो कि वो जानी है, जरा बताओ वो बंदर किस रंग का है? वो कहने लगा, मैं ना पहचानूंगा तो और कौन पहचानेगा? उसका रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वो आदमी झट से बोला, मैं तो अंधेरे में भी उसको पहचान सकता हूँ, उसके रंग को मैं बखूबी जानता हूँ, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को दरबार में उनके सामने हाजिर किया तो वो आदमी हैरान रह गए कि ये कब से आ गई। उसके साथ उसका बंदर भी मौजूद था और बंदर का रंग ना सफेद था, ना लाल था, ना काला था, ना खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग यकजां दिए थे। यानी कहीं से वो लाल था, कहीं से वो काला था, कहीं से खाकी था और कहीं पर सफेद था।
अल्लाह वाले तैश में आ गए। उन्होंने कहा अगर तुम लोग सच बताते, झूठा इल्जाम न लगाते तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वो कहने लगे हम सच ही कह रहे हैं, आप हमारी बात को माने। लोग हमारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आप भी तो बेटियों वाले हो, क्या आप नहीं जानते इन गंदी बातों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिए हम प्यार से तुझे बोल रहे हैं कि तुम काजी हो, सबके फैसले सुनाते हो, हमारा भी इंसाफ करो। फौरन से इस औरत को संसार करो, इसको रजम करो। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा अच्छा तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो, सच्चा कौन है ये तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है, लेकिन तुम सब लोगों ने तो इस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने इसकी गवाही नहीं दी। वो रईस आदमी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा अच्छा इस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया है? हम सब तो मिलकर इसको कह रहे हैं और ये सच है। अल्लाह वाले ने कहा नहीं, आदमी या इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जानवर इस औरत की गवाही देगा। वहाँ पर लोग खड़े हक्का बक्का रह गए और अल्लाह वाले से पूछने लगे ये जानवर बोल सकता है? क्या तुम पागल वागल हो गए हो? कभी सुना है जानवर भी बोलते हैं? लगता है इस औरत का जादू आप पर भी चल चुका है। ये भला बंदर कैसे बोलेगा? आपने कहा इस बंदर से इसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये बोल नहीं सकता, अब देखो ये अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस बंदर से कहा कि तू अपने मालिक का नमक खा चुका है। उसने तुझे इस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर वो तुझको वहाँ से नहीं निकालती तो तू जिंदा नहीं बच पाता। तुझको उस वक्त का वास्ता, क्योंकि तुम जानवर तो अपने मालिक का एहसान मानते हो और इंसानों से ज्यादा वफादार होते हो। यहाँ के इंसान तो बेहया हो गए हैं, लेकिन तुम तो फर्माबरदार हो ना। गवाही दो अपनी मालकिन के लिए। ये औरत कितनी पाक साफ है, अगर ये गुनाहगार है तो भी बता दो इन सब के सामने। अब ये खबर बाकी दूर दूर के गांव में भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अब लोग दूर दूर से उस औरत का इंसाफ देखने के लिए आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बोलने लगा। उसने कहा ये औरत तो बहुत ही पाकीज़ा औरत है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत आली दर्जा दिया है। ये कमाल की परहेजगार औरत है, इसकी तन्हाई भी पाक है और ये तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करती है। और मैं इसकी इबादत से इतना मुतासिर हुआ हूँ और अब मुझे भी सारी इबादत आने लगी है। इस औरत ने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। और जब ये आदमी रात की तन्हाई में इस पाकीज़ा औरत की इज्जत को तार तार करने के लिए आते थे तो मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की जात के आगे दुआएं मांगता था कि अल्लाह पाक इस औरत की हिफाजत फरमा, तू मेरी मदद फरमा। दुआ के असर से ना जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो इन लोगों को दीवार फलांगने नहीं देती थी। इसलिए ये लोग अपने घिनौने काम में कामयाब ना हो सके और इस पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया इस नेक औरत पर एक तोहमत है, इल्जाम है और इसके साथ झूठ बोला गया। किसी पाकीज़ा बाकिरदार औरत के साथ ऐसी घटिया बात का इल्जाम लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इस औरत को तकलीफ पहुंचाएं। जिस शख्स ने ये काम किया वो जहन्नमी है, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब ये फैसला आखिरी है कि इन चारों को रजम किया जाए। इन लोगों की माफी नहीं है। सारे शहर वाले सुन लो, तुम सब लोग यहाँ पर जमा होना और ये फैसला तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और ये दरबार आज इस बात की गवाही देता है कि इन चारों को सबके सामने उल्टा लटकाया जाए, फिर इनको पत्थर मारे जाएं। शहर का हर फर्द मिलकर इनको पत्थर मारेगा और फिर सरेआम चौक में लटका कर इन चारों को कत्ल कर दिया जाएगा। सारे शहर वाले हाँ में हाँ मिला रहे थे, सब उस नेक काम को करना चाहते थे। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वो बंदर भी उसके साथ ही रो रहा था। अब वो चारों अभी तक गए नहीं थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नेक बंदे हमें माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया, ये हमारी बहन है, हमने इसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दे, हम आइंदा इसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है। तुम्हारी माफी नहीं है। तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और जो भी शख्स किसी मजलूम पर जानबूझकर घटिया इल्जाम लगाता है उसकी यही सजा बनती है। फिर वहाँ के सब लोगों ने मिलकर उन आदमियों को संसार कर दिया और बाकी लोगों ने भी वहाँ खड़े खड़े तौबा की और इस शहर में अमन व अमान कायम हो गया। नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिला है कि किसी पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है और ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी पसंद नहीं की जाती। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया।